So good morning, students. Let's continue with the revision of exponents and powers. So yesterday we have done the laws of exponents. Then we started with the questions, right, of exercise 13.1. So beta, in 13.1 there is one question in your book. Like we have to tell which is greater, 4 raised to power 3 or 3 raised to power 4. In this question, listen to me. ये करना नहीं है, समझ लो. You can do yourself later on. इसमें बेटा आप देख सकते हो, आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना. You are not to write the direct answer. 4 cube means 4 into 4 into 4. 4 4s are 16. 16 4s are 64. Or 3 into 3 into 3 into 3. 3 3s are 9. 3s are 27. 3s are 80. ठीक है. So which is greater? 81. This implies 3 raised to power 4 is greater than 4. अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हो तो आपको सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा if the answer is correct. If the question is of 2 marks and you will get only half mark for the correct answer. इसके नंबर कटेंगे. इसी तरह से एक आपके पास पार्ट है 100 square or 2 raised to power 100. Now see in this question, we know 100 square means 100 into 100, that is 10,000. But you cannot, you are not to solve here 2 raised to power 100. 2 को 100 times multiply थोड़ी करेंगे हम. We are not that much free and we don't have that much time in exam. लेकिन हमें but we know this thing that 2 is getting multiplied 100 times. It will be a quite bigger number. 2 to the 4 to the 8 to the 16, 32, 64, then 108 and so on like this. 100 times multiply करोगे बहुत बड़ा नंबर आएगा. तो इसमें इस क्वेश्चन में जिसमें पावर बहुत ज्यादा बड़ी है, आप लिखोगे clearly 2 raised to power 100 is greater than 100 square. ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं. कना वीडियो ऑन करो if you want me to unmute you. Switch on the video if you want me to unmute. Otherwise, I'm sorry, I can't. Show me your face. Students, I will unmute you only if you will switch on your video and you will show me your face. Otherwise, see, there are 2 entries of Kanav. Kanav, हाँ, ये रहा, ये दूसरा इसको remove करेंगे. Get out. हाँ जी बेटा, fake entry fee I have removed. Now where is Kanav? Very smart. I asked you to switch on the video. वीडियो ऑन करके कुछ बॉल दिखा दी. Anyways, so I hope it is clear. इसी तरह से बेटा जैसे मान लो आपके पास है 2 raised to power 8 और 8 square. इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. Similarly, there is one more last question. 2.7 into 10 raised to power 12 and 1.5 into 10 raised to power 8. Which is greater? Which is greater? क्या करेंगे बेटा, इसमें हम ये डेसिमल हटाएंगे. डेसिमल हटाकर नीचे क्या आ जाएगा 10. 10 raised to power 12 का मतलब है कि 12 कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है 12 टाइम्स.
ऊपर कितने जीरोस हैं, कितनी जीरोस हैं न्यूमरेटर में? अरे कहाँ है 1? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 12 जीरोस हैं. So how many zeros in the numerator? How many? And in the denominator? अगर एक जीरो से कट जाएगी तो कितनी जीरोस बचेंगी? 11 zeros will left. It will become 27. पीछे कितनी जीरोस है? 11. जिसको हमने 0 0 0 0 0 0 0 0 लिखने की बजाय कैसे लिख दिया? 10 to power 11. Similarly, we will remove decimal. Multiply 10 to power 8. Now in the numerator, how many zeros? Hello, how many zeros? नीचे कितनी है डिनोमिनेटर में? काटो तो कितनी बचेंगी? Yes. Your name? Kanish. अब मुझे बताओ which is greater. Only he will tell, others will not speak. Out of these two, which is greater? शाबाश. वो वाला क्यों? क्योंकि इसके आप इसमें 11 जीरोस हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही है. इसमें क्या है? 15 1 2 3 4 5 6 7. नाउ यू हैव टू सी नंबर ऑफ डिजिट्स. ये करने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिखा है. कितने डिजिट्स हैं? 7 zeros 8 9 डिजिट्स. यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 11 12 13 डिजिट्स. We know that number is greater which have more number of digits. So this is greater. ठीक है? So now we are going to do the questions related to exercise 13.2. हाँ जी बोलो. वही करने लगे बेटा, वही करने लगे. अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने नहीं लिखा सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ. देन इट इज योर विश either to apply law or you can do in simple way also. बट कई क्वेश्चन होते हैं जो बिना लॉ के होते ही नहीं. Everyone, close your book. And you online students, you also close your book. To a raised to power 4. हाँ जी शाबाश. Do these sums. After 2-3 minutes we will discuss. Now we are going to discuss the solution. Come on, see on the board बच्चे. See 3 raised to power 7 divided by 3 raised to power 4. It is clear. It is very easy. A raised to power m divided by a raised to power n. It is equal to a raised to power m minus n. Same base, different power, divide sign. तो पावर क्या होती है?
मल्टीप्लाई साइन तो पावर क्या होती है प्लस, इट विल बी 3 raised to power 7 minus 4। और बेटा अगर क्वेश्चन में लिखा हो ना दैट राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर आप पावर फॉर्म में छोड़ सकते हो, बट अगर लिखा हो सिंप्लीफाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू से राइट नाउ, अगर लिखा हो सिंप्लीफाई तो 5 पावर तक आपने सॉल्व करना है। मान लो आपका आंसर आता है 8 raised to power 5 जनरल, तो आपको उसको सॉल्व करना है 8 into 8 into 8 into 8 into 8 जो भी आंसर आएगा। अगर आ जाए 8 raised to power 6 फिर ऐसे ही छोड़ दो, चाहे सिंप्लीफाई लिखा है तब भी 5 तक सॉल्व करना है। अगर लिखा हुआ है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर चाहे 2 पावर है तब भी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ना। हाँ जी समझ आ गई बात। So 3 cube we will write it as 27। 3 into 3 into 3, 3 cube मतलब 3 into 3 into, this is very easy। Second question, who will tell me the answer? Yes, Jashan, can you tell? 6 raised to power 5, ये तो बहुत ही सिंपल था। अगर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई तो 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 6 multiply by 6 multiply by 6 multiply by 6 multiply by 6 करके जो भी आंसर आता है, 6 6 36 36 6 21 हाँ जो भी आता है, अगर लिखा होता है सिंप्लीफाई तो। नेक्स्ट 2a raised to power 4, who will tell me? ये क्वेश्चन हो गया। 2a raised whole power 4 बताओ, स्पीक लाउडली। टू ए इंटू 2a इंटू 2a इंटू 2a, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एंड a कितनी बार है 4, a raised to power। अगर लिखा हो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म फिर कैसे करोगे, 2 raised to power 4 into a raised to power 4। These are the basic question which when comes in 1 mark only, not more than that। ये जो क्वेश्चन हमने अभी बोर्ड पे लिखे हैं सिंपल से, ये 1 नंबर से ज्यादा में नहीं आते हैं। समझ आ रहा है सबको, आगे समझ। नेक्स्ट आंसर आप बताओ, ये वो बताएगा। व्हाट्स योर नेम बेटा? प्रणव। किया सॉल्व? अभी करवा दो, कैसे करेंगे? -4m क्यूब, ये समझ आया आपको? इसका मतलब क्या है, -4m कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? आप सब क्यों बोल रहे हो? 3 बार, 3 टाइम्स। सो इट मीन्स वी कैन राइट -4m into -4m into -4m। यस, एक मिनट, जिससे पूछा वो जवाब देने तो उसको बच्चे। -m raised to power 3, वेरी गुड। माइनस आएगा क्योंकि 3 बार माइनस है, और माइनस 4 4 16 4 64, m कितनी बार है? 3 बार। सो -64 m क्यूब। भव्या वीडियो ऑन करो बेटे। बहुत ही सिंपल है। हाँ, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 into 3 into 3 into 3। 5 को भी 4 टाइम्स, 5 into 5 into 5 into 5। डिवाइड करना ही नहीं है बिल्कुल। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81।
5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। बस डिवाइड नहीं करना, यही छोड़ देना। यस, संकेत समझ आ रहा है? कॉपी तो तेरी सारी आ गई है, सम तुझे समझ नहीं आते हैं। नहीं बेटा 4 क्यों आएगा, ये देखना 3 के ऊपर 4 था, इसका मतलब क्या है कि 3 जो नंबर है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, इनको मल्टीप्लाई करके 81 आ गया। बस 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 81 को सॉल्व करके आया। ऐसे ही 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार। 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 120, 125 इंटू 5 60। ठीक है, now the last one, minus 4 by 7 raised to power 5. Yes, come on, who will tell me the answer? हाँ जी ऑनलाइन बच्चों, कौन बताएगा? वीडियो ऑन कर लो फटाफट से जिसने आंसर बताना है। ओनली हरजीत। ओके, यस हरजीत। Ma'am, we will multiply -4 5 times and 7 5 times. हाँ जी, -4 by 7। ऐसे प्रोडक्ट शो करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर भी लिख सकते हो। 5 टाइम नेगेटिव, so answer will come in minus। 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 into 16। 1024 ओवर। कितना ओवर बेटा हरजीत? ये मल्टीप्लाई है 7 7 का 49। हाँ जी बोलो। 49 7s are 343 and 7 7s are 49। तो 343 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे 1679 से, अगर सिंप्लीफाई में आता है। हरजीत क्या हुआ बच्चे, म्यूट करो। बुक में जैसे ये क्वेश्चन है एक्सपैंड, ऐसे एक्सपैंड नहीं देंगे आपको कि एक्सपैंड कर दो, खोल के लिख दो। हम हमेशा क्वेश्चन देंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, जैसे बुक में आपकी एग्जांपल है वहां लिखा हुआ है एक्सपैंड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। व्हाट यू पीपल डू? अच्छा ये वही क्वेश्चन है बुक वाला, बस इतना ही करके छोड़ दिया। इसका तो हाफ नंबर है, अदरवाइज कोई नंबर ही नहीं है वैसे तो। इसका नहीं डिवाइड नहीं करना बच्चे, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बस। दिस इज अवर आंसर। माइनस ऐसे रहेगा, देखो ना, माइनस अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस में आता है, माइनस अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो आंसर माइनस में आता है। कितने माइनस है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ऑड है तो आंसर किसमें आएगा? नेगेटिव। ठीक है, दैट इज राइट। वन टू क्वेश्चंस मोर। नाउ क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है। यूज द लॉ, सॉल्व बाय यूजिंग लॉ।
चलो ये 3 क्वेश्चंस करो, शाबाश। लेट्स स्टार्ट। बेटा बोर्ड पे देखो, ब्रैकेट में डिवाइड हो रहा है, सेम बेस, पावर क्या होंगी? माइनस, ये एज इट इज 3 raised to power 5 into 3 raised to power 5. Now you are not here to expand and multiply. You can see you have same base, so the powers will be 3 raised to power 5 plus 5, 3 raised to power 10. Answer. What is the answer? यहां देखो, पहले इन दोनों पे लगाएंगे लॉ। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर्स क्या होंगी? 2 raised to power 3 plus 2 into 5 raised to power, ये आया आपके पास 2 raised to power 5 into 5 raised to power 5। हाँ जी, स्कूल आने का फायदा हो रहा है ना कनिष्क, है ना? डिफरेंट बेस सेम पावर, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आंसर क्या आएगा? 10 raised to power 5। Now see this question everyone, 6 raised to power 3। हाँ, पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी? प्लस 6 raised to power 6। फिर सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या होंगी बेटे? And if the question is written write in exponential form, then you will leave your answer here. इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? So rest we will continue on Monday. हाँ जी, टाइम हो गया, ठीक है? Any doubt to anyone? Fine. All right, students. See you on Monday. Revise the chapter properly. Take care.